स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಬಿಜಾಪುರ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज SDPI की तरफ से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम DC साहब के ऑफ़िस को आए थे। हमारा एक मनवी देने का एक मकसद था और DC साहब नहीं हैं तो हमें ADC साहब को मनवी दी। जो हमें ADC साहब को मनवी दी उसमें हमारा जो मैटर है वो बीजापुर सिटी डेवलपमेंट के ताल्लुक से है। ये बीजापुर सिटी में जो भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, इलेक्शन से लेके अभी तक अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 0% डेवलपमेंट है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। कहीं पर अगर काम भी चला है तो वो 0% के हिसाब से चला है। अब हमें यहाँ को मेमोरेंडम दिए तो हमारे वार्ड के इंजीनियर साहब आते हैं, माप लेते हैं, रोड का ख़त्म हो गया, निकल जाते हैं उन्होंने। तो जो डेवलपमेंट है असल बीजापुर का वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो हमें हमारे DC साहब से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट है आप उसके ऊपर क्या है जल्द से जल्द कार्रवाई करना। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि 15 दिन या 1 महीने का हमें टाइम दे रहे हैं। अगर उसके अंदर तुम्हें नहीं करेंगे तो हमें क्या है DC ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे, हमारा ये मकसद है। तो मैं इसमें क्या है DC साहब को क्या है मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द क्या है उसके ऊपर कार्रवाई करे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान, SDPI सिटी परसेंट। ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ। ಮೊದಲನೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ SDPI ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡೀವಿ। ಕೆಲವೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡವಲ್ರು ಅವರು। ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೂ ತಿಳಿಸೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸೀವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ। ಕಾಮಗಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಐತಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಳತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು। ನಗರ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಇದರೊಳಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡವಲ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ। ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಡ್ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। ಮತ್ತೆ ನಗರ ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿಜಯಪುರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟೀನಿ ಅಂತ ಪದೇ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ನೀವು ಅಂತಾರೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತಾರೆ। ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಐತಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 18 ಹಿಡಿದು 35 ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುರ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಐತು ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಿಟಿ ಐತಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಿಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡವಲ್ರು ಅವರು। ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಪ ಇದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪದೇ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಲಿಂದ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರಿಸತ್ತಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಶೋಭೆ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಶೋಭೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರೋ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಐತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು। ಮುಂದೆ ಈಗ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಐತಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡೀವಿ। ಅವರು ಈ ಥರ ಹಗಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡಬೇಡ್ದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇರ್ತೈತಿ, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪದು।
ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಥವಾ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರಿ? ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನಗರದಾಗ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಜೆಟ್ ಸರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧನ ಸಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿಡಿ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮೇಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಾಗೈತಿ. ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದಾರಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡುವೆ ಏನು ಸರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಅವರ ವಿರೋಧ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ಆಗಲಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಂತವು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಸಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮುಕ್ಬಿಲ್ SDPI सदस्य। हमारा यहाँ जमने का जो मकसद है एक बहुत बड़े अहम मकसद के साथ हम यहाँ पर जमा हुए हैं। ये पूरी हमारी SDPI की जो टीम यहाँ पर आई है एक बहुत बड़े इश्यूज़ के तहत, जो बीजापुर के हालात हैं उसके तहत हम आज यहाँ पर आके एक प्रोटेस्ट की शक्ल में यहाँ पर DC ऑफिस में DC सर को मनवी देने के लिए हम यहाँ पर आए। DC देने की वजह बहुत सारी है, क्योंकि बीजापुर के हालात पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वेरी वीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ वेरी वीक बीजापुर सिटी का। ये मैं टोटली बाकायदा बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत वीक है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम का कोई डिज़ाइनेशन नहीं है, ना कोई प्लानिंग है। यहाँ रोड्स का कोई प्लानिंग नहीं है, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स का प्लानिंग नहीं है। कहीं ना कहीं बीजापुर को डेवलपमेंट करने के लिए, बीजापुर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स, यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के डिज़ाइनेशन में जो करना था वो डिज़ाइनेशन कहीं ना कहीं फेल हुआ है। फेल हुआ इसलिए तो आज वार्ड नंबर 34 की हालत उस तरह की है, वार्ड नंबर 29 की वहाँ की हालत देखो, और जामिया मस्जिद के रोड्स की हालत देखो। कितने रोडों पर खड्डे हैं, कितने रोडों पर धूल है, कितना 1-2 घंटे की बारिश अगर लगातार होती है बीजापुर शहर में तो पूरे बीजापुर शहर के हालात बदतर हो जाते हैं। हर शहर में चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियां लेकर घूमना मुश्किल होता है। अगर एक रास्ता है वहाँ पर गाड़ी जा सकती है, वो गाड़ी लेकर जाना तो दूर, वहाँ पैदल भी जाना मुश्किल है। इतने हालात बुरे हैं। वहाँ पर जब पानी एक जगह जम जाता है तो वहाँ पर मच्छर, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया होने का बच्चों को चांस है। वहाँ प्राइम स्कूल के पास भी वहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हुआ है। और तुम्हें जामिया मस्जिद की रोड पर बहुत सारे एरियाज़ को देखेंगे तो वहाँ के हालात आपको पता चलेंगे। ये इस तरह का बीजापुर का जो इम्प्रूवमेंट है बिल्कुल इसकी तरफ यहाँ पर ध्यान नहीं है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? यहाँ पर फंड नहीं है बोल के हमें बार बार एक बात बताई जा रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम इसको फंड नहीं दे सकते, हमारे पास वो फंड नहीं है। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सरकार से कि बीजापुर सिटी को ये जामिया मस्जिद की रोड या फिर जितने भी जो पुअर पीपल जहाँ पर रहते हैं, जो स्लम एरिया जहाँ पर हैं, जहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटीज़ दूसरे कम्युनिटीज़ में जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उन्हें फ़ंड देने के लिए नहीं है। क्या जगह फ़ंड नहीं है। मगर उधर साइड हम जब एरियाज़ को देखते हैं, बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर जब हम नज़र पाते हैं, सिद्धेश्वर गुड़ी के उधर साइड एरिया को लो, ऐश्वर्या कॉलोनी को लो, MB पाटिल नगर को लो, ये सब कॉलोनीज़ में जब सर्वे किया, इधर जामिया मस्जिद रोड की कॉलोनीज़ को सर्वे किया, अताउल्ला चौक को सर्वे किए हम लोग, बड़ी कमान को सर्वे किए, पूरे जामिया मस्जिद के बैक साइड रोड मुबारक चौक का हम जब सर्वे करते हैं तो यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं। यहाँ रोड्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम से ड्रेनेज से पानी बाहर आकर रोडों पर जम रहा है, उसकी तरफ यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं। लेकिन MB पाटिल नगर, ऐश्वर्या नगर, अब सिद्धेश्वर गुड़ी के BLD कॉलेज के अपोजिट के रोड देखो, BLD कॉलेज KCP कॉलेज के रोड देखो, वहाँ पर बिल्कुल डेवलपमेंट है, वहाँ पर फंड्स हैं। वहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर देने के लिए आपके पास फंड है, लेकिन ये एरियाज़ को देने के लिए फ़ंड क्यों नहीं है? ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ कहीं ना कहीं किसी के साथ इंसाफ और किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जब यहाँ के MLA अतनार जो हैं, इन्हें पूरे बीजापुर सिटी के बारे में सोचना चाहिए। वो ज़रा कम्युनल स्पीचेस से अगर बाहर आए तो उन्हें पता चलता है कि सिटी में क्या चल रहा है। कभी वो किसी की वक़्फ़ प्रॉपर्टी को हड़पने की बात करते हैं, किसी की वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर
पर डाका डालने की जब बात करने से अगर वो जरा उससे हटकर उनकी जो जिम्मेदारी है एक एमएलए की जो जिम्मेदारी होती है अगर उसके तरफ अगर एमएलए अटनाड़ का अगर ध्यान होता तो आज बीजापुर सिटी की इस तरह की हालत नहीं होती। बीजापुर सिटी में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ पर जामिया मस्जिद जैसा इतना बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस मौजूद है जहाँ पर अदर कंट्रीज से लोग देखने आते हैं। तो सोचते हैं वो लोग कि क्या हालत है ये बीजापुर सिटी के। जामिया मस्जिद को आने के लिए कई रोड आप रास्ते में जब अताला सर्कल से बस स्टैंड से दादरी मस्जिद से गुजरते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बीजापुर में। यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम्स नहीं, ये मैं रोड की प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं, कहाँ पाइप डालना है, कहाँ उसका फ्लोइंग देना है। अगर बारिश यहाँ पर ज़्यादा आई तो यहाँ पर पानी खड़ा होने का चांस है। तो इसके बारे में हमें क्या प्लानिंग करना है, एक बैठकर इसका प्लानिंग एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाकर उसके बाद अभी रोड जस्ट बनाए रहते हैं, एक रोड का काम जस्ट रहता, सेकंड दिन आकर उसे बोल्डोजर से आकर उसे खड्डा बना कर छोड़ते हैं, फिर वो रोड डैमेज, फिर उसके बाद फिर वो रोड बनाने का। यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन चला है, नीचे से लेकर ऊपर के डिपार्टमेंट तक करप्शन चला है। क्यों बोले तो एक कॉन्ट्रैक्टर, मैं बोल रहा हूँ ये 40% कमीशन की सरकार है। देखो ये 40% जब आप लोगों को कमीशन मांग रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर रहे हैं आपका। मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा है, रोड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा है, ड्रेनेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्यों नहीं ले रहा उन्हें कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं ले रहा बोले तो यहाँ कमीशन है, उसे कमीशन देना है, ऊपर कमीशन देना है, 40% कमीशन देना है, इतने सारे कमीशन, इतने इसका पैसा उसका पैसा देने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में क्या था, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना करे। देखो स्ट्रीट लाइट की हालत देखता हूँ मैं, एक जंक्शन की तरफ बहुत सारे वायर्स जुड़े हुए रहते हैं, तारों का एक झुंड रहता, ये स्ट्रीट लाइट्स की हमारे हालत है। कोई मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स नहीं, हमारे एरियाज में जाकर आप देखो कहाँ भी स्ट्रीट लाइट्स का आपको प्रॉब्लम है। और देखो कुत्ते, जो कुत्ते हैं मोहल्ले में, कुत्ते हैं जो बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल जा रहे हैं तो अटैक कर, इतने झुंड हो गया है कुत्तों का मोहल्लों में, इसकी तरफ ध्यान नहीं। अगर वो कुत्ता अगर किसी को लड़ता है, मैं आपको एक साइंटिफिकली बता रहा हूँ, अगर कुत्ता किसी को काटता है तो उससे रैबिस की बीमारी होती है। जिन कुत्तों को रैबिस की बीमारी रहती नहीं, अगर वो कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो उससे भी रैबिस की बीमारी आती है। वो रैबिस की बीमारी इतनी खतरनाक है कि बहुत जानलेवा बीमारी, ऐसी बीमारियों का शिकार हमारी कम्युनिटी हो सकती है। हमारा यहाँ का समाज बीजापुर रहने के जो अवाम है यहाँ की रैबिस जैसी बीमारी का शिकार ना हो। इन कुत्तों के लिए कोई एक सेफ्टी जगह करो, आप वहाँ उनको डालो, या फिर उन्हें कोई ऐसा इंजेक्शन देखो जिनका जनरेशन ही ना बढ़े, जिनकी जनरेशन ना बढ़े, उनका स्टेरिलाइजेशन करो, उनका फर्टिलाइजेशन ना हो, ऐसे इंजेक्शन बनाओ ताकि वो ज़्यादा बच्चे पैदा ही ना कर सके। अगर वो कुत्ते बच्चे पैदा करेंगे तो फिर उनकी भी आवाम बढ़ेगी, फिर शहरों में कुत्तों का ढिंढोर हो जाएगा और फिर हमारा जीना, हमारा चलना, हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत सारे मैटर्स हैं, देखो बहुत इश्यूज़ हैं बोलने के लिए। शराब की दुकानें हमारे शहरों में हैं, बहुत सारी शराब की दुकानें सिटी में मौजूद हैं, इन शराब की दुकानों को सिटी के बाहर होना चाहिए। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के करीब शराब की दुकानें हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अभी बोलते बैठे तो बहुत सारा है, ऐसे बहुत सारे हालात हैं। इन चीज़ों की तरफ हमारे यहाँ के डीसी सर का ध्यान होना चाहिए, हमारे एमएलए सर का ध्यान होना चाहिए। हमारी अवाम, हम बार बार यहाँ पर आके मनवी दे रहे हैं, बार बार एसडीपीआई की टीम आकर यहाँ बार बता रही है, इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बीजापुर की अवाम पूरी तरह से परेशान है, बीजापुर की अवाम रोडों से परेशान है, बीजापुर की अवाम ड्रेनेज से परेशान है, बीजापुर की अवाम स्ट्रीट लाइट नहीं रहने की वजह से, रास्ते नहीं दिखने की वजह से परेशान है। बीजापुर की अवाम वो जो आवारा कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं उनसे परेशानी है, उनके बच्चों को काट रहे हैं, उनकी तरफ से बच्चों को बाहर जाना, स्कूल को जाना मुश्किल है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं। हम मुद्दीबाना हमारे डीसी सर से गुजारिश करता हूं कि आपका ध्यान हमारे रोडों की तरफ हो, हमारी सिटी के डेवलपमेंट की तरफ आप कुछ फंड सैंक्शन करें, कुछ डेवलपमेंट की तरफ। हमारी कर्नाटक सरकार, हमारे सिद्धरामैया सर से मैं गुजारिश करता हूं कि वो बीजापुर शहर की तरफ, खासकर हमारे बीजापुर शहर की तरफ उनका ध्यान रहे। हमारे बीजापुर शहर को वो देखें, वो यहाँ पर आकर भी गए हैं, उनको पता भी है बीजापुर की शहर की हालात क्या हैं, यहाँ के रोड्स के क्या हालात हैं, उन्हें सब पता है। वो इसकी तरफ ध्यान देकर यहाँ के काम को कराने की कोशिश करें। बस एसडीपीआई जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद। जब हरा लाल लहराएगा इनकलाब आएगा, जब हरा लाल लहराएगा इनकलाब आएगा।
जिंदाबाद SDPI जिंदाबाद 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 SDPI जिंदाबाद ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಮಗಲೇ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಬರ್ತೈತಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ರೀ ನಾವು ಏನೋ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಳದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಮುನಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕೆಲಸ ಡ್ರೈನೇಜ್, ರೋಡ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್, ಗಟ್ಟರಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದಾವೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತನಕ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅದಿಗಟ್ಟೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಓಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.